Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss Sultan Ahmed Masjid, Unit 7 of our series. And इसमें हम देखेंगे इस मस्जिद के हवाले से. तो मैंने कोशिश की है काफ़ी इस चैप्टर को खूबसूरती से पेश कर सकूं, क्योंकि ऐसी चीज़ें इसमें कि जो आपसे पूछ रही हैं, आपसे जानना चाह रही हैं, और काफ़ी चीज़ों को आपको बयां किया जा रहा है, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे तो अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा. तो मैंने हद तो इम्कान कोशिश की है कि I've tried my best to include more and more images so that you can get a clear picture. Oh, this thing looks like this. Oh, this one is the person. Oh, if you're the lines are talking about this entity. So that you can get a clear image. So this image is of Sultan Ahmed Masjid. And then moving towards pre-reading question, we have very first thing is name some of the historic places in Pakistan. So Mohenjo-daro, Sindh; Taxla, Islamabad; Badshah Masjid, Lahore; Minar-e-Pakistan; Islamic College, Peshawar; Hiran Minar, Sheikhupura; Rohtas Fort, Jhelum; Victoria Hospital, Bawalpur. And then moving towards the next question, tell the name of some important masajid in Pakistan. So the very first masjid is of Badshah Masjid, Lahore. The second is Shah Faisal Masjid, Islamabad. The third is Shah Jahan Masjid, Thatta, Sindh. The fourth one is of Muhammad Khan Masjid, Peshawar. The next one is Grand Jamia Masjid, Lahore. And then Grand Jamia Masjid, Karachi. You can also see the pictures of these masajid on net. You have to surf on the net. And then here's the flag of Turkey. And the question is, what do you know about Turkey? So they are asking you that, do you have any idea of or information about Turkey? So we have this, the capital of Turkey is Ankara, and the largest city is Istanbul, and the official language of Turkey is Turkish. And the next thing is currency. The currency is Turkish lira. The next thing is its covered area, and that is 783,356 kilometers square, and then its population is 83,154,997. And then here is, you can see the map of Turkey. The map of Turkey, and it's the map of Turkey, and you can see the adjacent areas as well: Bulgaria, Greece, Georgia, Azerbaijan, Lebanon, Syria, and many other countries. Now moving towards its very first paragraph. The first paragraph is of the Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monument in the world. So this is the image of Sultan Ahmed Masjid, the interior of Sultan Ahmed Masjid, right? And monuments, I have also mentioned the meanings of the difficult words in brackets, so that you can not find any kind of difficulty while reading the text. And then it's also known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellishes its interior. Now you can see that into the picture that there are the blue tiles, you can see easily, and they are embellishing actually the mosque. Embellishing means decorating, right? Beautifying the interior of the mosque. And it's situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. It has become the most popular tourist attraction. Now this masjid is not only a monument, rather it's a source of attraction for the people all across the globe. They are taking interest in visiting this place, and this is one of the historic place which stands during the Ottoman Empire. It has you can say that there's a long span of time, and this mosque stands, right? And ये कहा जा रहा है कि आपसे ये सुल्तान अहमद मस्जिद जो है, ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई दिलकश किस्म की मस्जिद है, जिसे नीले टाइलों से सजाया गया है, जिसके इंटीरियर को आप देख भी सकते हैं, अंदर से इसे बड़े खूबसूरती से बनाया गया है. और ये इस्तांबुल जो टर्की का कैपिटल है, यहाँ पे ये मस्जिद वाक़या है, और खिलाफत उस्मानिया के उस अहद को बताया जा रहा है जो कई सदियों पे मुश्तमिल है, मुहित है. उन अहद को इस मस्जिद ने देखा है, और वो गुजार के अब यहाँ तक पहुँच चुकी है. और ये एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और देखते हैं, इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं. ये इधर एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, द पिक्चर ऑफ
Ahmad one I have written there, and who is he you will came across in this second paragraph. So it was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. So this picture is actually the picture of the ruler of Turkey, and he was the man who actually started, who was intended to build this mosque. As was the custom, this masjid, like other masajid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa, and a hospice. Hospice means house or living place. तो कहा जाता है कि ये अहमद जो उनके हुक्मरान थे जो पहले, तो अहमद वन, उन्होंने इस मस्जिद को बनाने का इरादा किया और उन्होंने इसे शुरू करवाया। और जैसा कि हमेशा होता है कि उसका मकबरा भी वहाँ पे मौजूद है, एक मदरसा भी है, और फिर रिहायशी जगह भी उस मस्जिद में बनाई गई है उसके साथ में। And then moving towards paragraph 3, here again I have mentioned a picture, and I have also written the name on the top corner. That's Sidi for Mehmet Aga. Who is he? Construction of masjid started in 1609. बाकायदा से 1609 में इस मस्जिद का काम शुरू हो गया। फिर क्या हुआ जी? The royal architect Sidifer Mehmet Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project. So here you came to know that this picture is actually of the picture of the architect, of the designer who designed the mosque, right? और ये मुंतखब हो गए इंचार्ज इस पूरे प्रोजेक्ट के, ठीक है। And the opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. तो जिन्होंने आगाज़ किया था इस मस्जिद का, वो अपनी इनके इसके बनाने का, वो अपनी लाइफ में तो इसे देख ना पाए जो, और इसकी तकमील जो है वो बाद में कहीं जाके हुई। तो तकमील किन के अहद में हुई, वो कौन थे जिन्होंने इन्हें मुकम्मल किया? यानी अहमद वन जो थे वो नहीं देख पाए अपनी लाइफ में ना इस मस्जिद को बनता हो। तो तकमील किन के अहद में हुई, आए उनको देखते हैं ज़रा। तो ये हैं वो हस्ती जिनके अहद में ये तकमील हुई है। ये पैराग्राफ 3 and 4 हमारे पास है, इसमें देखते हैं मैंने लिखा कि इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन। तो ये मुस्तफ़ा वन उनकी पिक्चर भी है और आप देख सकते हैं ना जो ड्रॉ की गई है। तो इन्होंने इस मस्जिद को मुकम्मल किया, या इनके अहद में ये मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ और इनके अहद में इस मस्जिद का इफ्तिताह हो गया, inaugurated the mosque. Blue Masjid reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine Church Hagia Sophia. A masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as model. Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ कह रहा है। तो कहते हैं कि जी अगर तामीराती हवाले से देखा जाए तो ये इंतहाई बाकमाल किस्म की तामीर है, जिसमें दो अहद को उन्होंने शामिल किया गया। दो रिफ्लेक्शंस हैं, एक तो ये है कि ऑटोमन मसाजिद किस तरह से थी और बेजेंटाइन चर्च जो बनाए जाते थे वो किस तरह के थे। तो इन दोनों के मिक्सचर का की जो सूरत है वो इस मस्जिद की सूरत में हमें सामने आती है, या ये मस्जिद इन दोनों की डिज़ाइंस का मिक्सचर है, आप ये भी कह सकते हैं। और कहते हैं कि मुस्लिम तारीख़ को अगर आप देखें तो उनमें ये मस्जिद एक सब कमाल की चीज़ है जो बनाई गई है, जिसे डिज़ाइन किया गया है। और आज भी कहते हैं कि इसकी खूबसूरती, इसकी दिलकशी, इसकी इसका जो हुजम है उसको देखा जाए। नहीं, हुजम से मुराद ये नहीं कि सिर्फ साइज़ देखें तो सबसे बड़ा, नहीं, साइज़ से मुराद ये कि जो स्टेचर है सदियों पे मोहित, इतना बड़ा, इतनी खूबसूरती का, इस डिज़ाइन का, ये तमाम चीज़ें उस स्टेचर में, उस साइज़ में शामिल है, ठीक है। तो कहते हैं ये कमाल की है, इसका मुकाबिल कोई नहीं है। तो चलते हैं पैराग्राफ 5 की तरफ। पैराग्राफ 5 में हमारे पास है, पैराग्राफ 5 में कहते हैं कि द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade, and it has ablution facilities on both sides. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. तो जो पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे ऊपर, यहाँ पे वो जो सहन है उसका दिखाया कि वो किस कदर कुशादा बड़ा सहन है, और उसके दरमियान में आप देख रहे होंगे कुछ लोग भी जमा है वहाँ पे। ये वो एरिया है जो अबलूशन प्लेस है, यानी वज़ू की जगह है यहाँ पे, और ये खुली डिली जगह है जहाँ पे लोग वज़ू करते थे मस्जिद में दाखिल होने से पहले।
ठीक है। और इसी में ही एक फव्वारा भी है, अगर आप उसको मज़ीद देखना चाहें तो फिर थोड़ी सी मेहनत आपको करना होगी, कुछ जाना होगा, नेट पे देखना होगा, सर्च करना होगा। तो ये फाउंटेन भी जो इसके अंदर ये एवोल्यूशन प्लेस के है वो भी आप देख सकेंगे, राइट। And the next then a heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. This side was meant for the sultan alone. The chain was put there so that the sultan had to lower his head every time to enter the court. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine. या बड़ी खूबसूरत बात कही है। कहते हैं कि ये मैंने इधर से इसकी भी पिक्चर लगा दी, आप देख रहे हैं एक जंजीर है जो लटकी हुई है और ये मगरिबी साइड पे है ये दाखिले का रास्ता, और ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तानों के लिए नहीं, वो हुक्मरानों के लिए था कि वही इधर से गुजर सकते थे, बाकी किसी और का गुजर यहाँ से नहीं था, ठीक है। अवाम उन्नास का रास्ता अलग। तो कहते हैं वो यहाँ से जाते हुए इस चेन को लटकाने का मकसद क्या है? इस चेन को लटकाने का मकसद ये था कि जब भी सुल्तान यहाँ से गुजरे यानी मस्जिद में दाखिल हो रहा हो तो वो सर झुका क्या है। इट मीन्स एक्चुअली दिस चेन इज़ अ सिंबल ऑफ सबमिशन, कि जो सुल्तान है उसको क्या करना होगा, ख़ुद को सबमिट करना होगा, यानी कुदरत के पास, ओमनीपोटेंट के पास, ऑलमाइटी के हुजूर में जाते हुए वो तमाम तर ख़ुद को हकीर समझे, ख़ुद को कम तर जाने और झुका हुआ उसके हुजूर में पेश हो जाए। ये इस मकसद से इस चेन को बनाया गया कि अगर कहीं गलती से भी कभी वो सर उठा के जा रहे हो तो चेन के पास पहुंचे तो उन्हें याद आए और उनका सर खुद ब खुद ऑटो झुक जाए। तो इस मकसद से इसको क्रिएट किया गया और ये एक तरह से उनको याद भी कराए कि देखो तुमसे भी बड़ी कोई ताकत है, कोई हुक्मरान है इस कायनात का, ठीक है, जिसके सामने तुम्हें भी झुकना है। गो कि उनके सामने सब झुक रहे हैं लेकिन उन्हें भी कहीं झुकना है, इस गर्ज से इस चेन को बनाया गया, ठीक है। सो हेयर आई वुड लाइक टू से थैंक यू, क्योंकि डिस्कशन काफ़ी तवील है एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में जो रेस्ट हमारे पैराग्राफ्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स हो सकें और बाकियों में भी ये कोशिश की है वो इसमें शामिल कर सकूं, ताकि ये जितना हो सके ये इसको दिलकश बनाया जा सके, खूबसूरत बनाया जा सके और सबसे ज़्यादा कि आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़े और आप बड़े इंटरेस्ट से इसको पढ़ें देखें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।